Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 10.1 chapter 10 circles from NCERT. Before starting with the chapter, let's quickly revise whatever the terms we have learned so far related to the circles. Then we will do the new terms which we are going to learn in this chapter, and then we will start with the exercise, right? Okay, let's start with what is called a circle. Circle होता क्या है actual में? Circle is a collection of all the points in a plane which are moving at a fixed distance from a fixed point. अगर हम plane की बात करें तो plane में बहुत सारे points हैं, infinite many points, right? अब ऐसे बहुत सारे points होंगे जो इस O point से fixed distance पे move कर रहे हैं, like this is, right? ऐसे सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्कल, राइट? एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स इट इज कांस्टेंट डिस्टेंस, and this fixed distance is called the radius of the circle and the fixed point is called the center of the circle, right? ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस ईयर भी पढ़ी थी इन क्लास 9th. जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं. एंड व्हाट इज कॉल्ड द रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रेडियस. This is the first term which is called what is called the radius. The next one is what is called the diameter. The diameter is a line segment. It is not a line. A line segment which passing through the center of the circle and whose end points lies on the boundary of a circle, that is called a diameter. Diameter is not a line. Diameter is a line segment. Line segment means part of a line, right? Diameter is a line segment whose end points lies on the boundary of the circle. How many radius we can draw in a circle? Infinite. How many diameters we can draw? That are also infinite. Diameter is also called the longest chord of the circle. Now what is called a chord of a circle? Chord is a line whose end point lying on the boundary of a circle. Chord is again a line segment. It is not a line. It is a line segment whose end points lies on the boundary of a circle. Chord की बस इतनी सी कंडीशन है कि इसके जो end points हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने चाहिए, right? तो इस डेफिनेशन से देखा जाए तो डायमीटर भी हमारे पास एक chord ही हुआ, क्योंकि डायमीटर के भी तो end points सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं. Yes. Diameter is also a chord of a circle and it is a longest chord of the circle. Radius और diameter में क्या relation होता है? Diameter is double of the radius and the chord which is passing through the center of the circle, that is called a diameter of the circle. Now the next one is what is called a segment. Segment of a circle. एक होता है सेगमेंट ऑफ ए लाइन. लाइन के सेगमेंट को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का हिस्सा. अब सर्कल के सेगमेंट को क्या बोलेंगे? सर्कल का पार्ट. अब वो सेगमेंट किसको कहते हैं? इफ वी आर हैविंग अ सर्कल एंड वी विल ड्रॉ अ कॉर्ड इन अ सर्कल, दिस कॉर्ड draw the region of the circle into two parts, right? This is called the major segment and this one is called the minor segment. This is called the minor segment and this one is called the major segment. Is it clear? The major segment is also containing the center of the circle. What it is called? This is called major segment and this is called minor segment, right? What is called the segment? Segment is the region enclosed between a chord, this is a chord CD, and the arc of a circle, that is called a segment of a circle. This and the chord and the major arc, the region between the chord and the major arc, this one region which is containing the center of the circle, this is called the major segment of the circle. Now the next one is what is called the sector of the circle. Sector is again a region. Region means area, right? अगर मैं sector की बात करूँ तो what is called the sector of a circle? If I will take two radii of a same circle, one is OP, another one is OQ. The region enclosed between two radii and one arc is called the sector. अब देखा जाए तो ये भी सेक्टर है और ये वाला भी सेक्टर है ना? तो
So this one smaller one, the two radii and which containing a minor arc is called the minor sector. Minor sector. And the region enclosed between two radii and the major arc, this is called the major sector. The next one is arc. These two definitions are very simple. What is called the arc? Arc is called the part of the boundary of a circle. अगर आपके पास कोई बैंगल है, अगर आप उस बैंगल को ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो छोटे छोटे से पीसेस बनते हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो हमेशा छोटी छोटी सी क्या बनती है आपके पास, आर्क्स बनती हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एन आर्क. व्हाट इज कॉल्ड एन आर्क? अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ये जो मैंने शेड किया डार्क, दैट इज कॉल्ड द arc of a circle. Hope it is clear. The next one is circumference of the circle. Circumference is called the entire boundary of the circle is called its circumference. And the region enclosed between this boundary, that is called its area. Hope all these terms are clear to you, as we have already done all these terms in our previous classes. Now we are going to do the concepts which are going to cover in this chapter. The new concepts are there, one or two new concepts, very easy chapter and easily understandable. Let's start with that. Okay, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने इस प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल और एक लाइन. देयर आर थ्री मेन ways by which we can draw. The first one is we will draw a circle and we will draw a line. Anywhere you can draw. You can draw it here, where there is no point common between a circle and a line. This is the case 1. Another case is, this is case 2. अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये सर्कल को कट करती हुई जा रही है. एक लाइन सर्कल को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है? 2 पॉइंट्स पे ही कट कर सकती है. और ऐसा क्यों होता है? आपको पता है 3 कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल आप कभी नहीं ड्रॉ कर सकते. कोलिनियर सर्कल को पास करने के लिए अगर आप 3 पॉइंट्स को एक लाइन पे ड्रॉ करते हो तो इस तीनों से पास करता हुआ सर्कल वी कांट ड्रॉ, राइट. तो देयरफॉर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को कट करती है तो वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट करती है सर्कल को? 2 पॉइंट्स पे. द नेक्स्ट वन इज केस 3. एक तो था कि सर्कल ड्रॉ किया और लाइन ड्रॉ की, देयर इज अ नो पॉइंट कॉमन. In this case, the line is intersecting the circle at 2 distinct points. And the third one case is when we are having a line which is just touching the circle, like this. And when the line is touching the circle, it will touch the circle exactly at one point, P. Is it clear? There are 3 possibilities total. अगर हमें एक प्लेन में एक लाइन और सर्कल ड्रॉ करना है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज़. इस केस में तो सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा. इन दिस केस व्हेन द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, in this case this line is called secant. What it is called? Secant. And in this one case when the circle and the line is having one common point, it is called tangent of a circle. This is called tangent of a circle, right? And the point where the line touching the circle, that point is called point of contact. अब हमारा 10th क्लास का मेन टॉपिक ही यही है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की हमने सारी स्टडी करनी है. एक लाइन है जो सर्कल को टच करती हुई जाती है, वो किस किस तरह के रिजल्ट्स बनाती है, इस लाइन के साथ और रेडियस के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, अगर एक पॉइंट है और एक सर्कल है तो हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ. दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू रिवाइज. आवर मेन टॉपिक ऑफ क्लास 10th इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. Tangent of a circle. What is called the tangent of a circle? A line which touches the circle or intersects the circle exactly at one point, that is called the tangent of a circle. Let's start with the next.
ओके, अभी हमने क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया कि हमारा 10th क्लास का मेन टॉपिक है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। अब इसमें जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा वो है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड थिंग इज हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ टू अ सर्कल। एक सर्कल पे हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बेटा, सर्कल एक्चुअल में था क्या, द पॉइंट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर मूविंग एट द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं, मतलब इसकी बाउंड्री पे तो इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस और वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस एंड दिस वन आल्सो वी कैन ड्रॉ। तो एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम इनफिनाइट मैनी। एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट। एट वन पॉइंट एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब इस जगह पे भी बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करती हुई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। टेंजेंट सर्कल को हमेशा कितने पॉइंट्स पे टच करती है, वन पॉइंट पे। आप इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन भी करके देख सकते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स पे टच करती है, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने इस पर एक पॉइंट लिया, मैंने बोला इस पॉइंट से ड्रॉ करती हुई एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे मैंने एक टेंजेंट तो ड्रॉ कर दी जिसको एग्जैक्टली टच करती हुई जा रही थी। हाउ वी कैन ड्रॉ अदर टेंजेंट्स। जैसे ही आप इस टेंजेंट की पोजीशन को थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर जाएगी। और ये जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, टेंजेंट वी कैन कंसिडर इट एज ए बी, इसको छोड़ के बाकी सारी जो लाइंस हैं वो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। ये दो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये भी दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये भी। द लाइन विच टचेज द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड एट वन पॉइंट ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट पे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट मेन टॉपिक इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हम किसी टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने एक पॉइंट लिया P, मैंने P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया A, राइट। अब जब हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो क्या हम AB की लेंथ निकालेंगे? नो, AB की लेंथ तो हम निकाल ही नहीं सकते, ये तो लाइन है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। ना तो इसका इधर से कोई एंड पॉइंट है, ना तो उसका उधर से कोई एंड पॉइंट है। फिर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते कैसे हैं? एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिए, एक सर्कल दिए, दिस इज इट्स सेंटर, राइट। मैंने सर्कल के बाहर कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया M। अब मैंने M पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, दिस वन। ये टेंजेंट सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है, राइट। मैंने किससे ड्रॉ करी है, दिस इज अ पॉइंट M विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। जो पॉइंट M है वो सर्कल के बाहर कहीं लाई कर रहा है। इस पॉइंट से मैंने सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी MP एंड P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस वन डिस्टेंस, यू कैन से this one distance, this one total distance, this is called tangent length of the tangent। मतलब हमें P से लेके M तक की लेंथ को tangent length of tangent बोलते हैं। What is the length of the tangent in this case? PM is the length of the tangent। मतलब हमें कौन सी डिस्टेंस को मेजर करना होता है, from the point of contact to the point which lies outside the circle। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके उस पॉइंट तक जो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है उस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर आप इस तरह से देखें तो हम इस पार्ट को मिटा ही देंगे। एक्चुअली दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, दैट इज फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द point of contact to the point which lies outside the circle, that is called the length of the tangent। Okay,
Let's start with exercise 10.1. Okay, let's quickly start with exercise 10.1. First question is how many tangents a circle can have. एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है मैक्सिमम. अभी हमने डिस्कस किया है कि एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफिनाइट मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाई जा सकती है. तो इसका मतलब एक सर्कल की टोटल कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं. इनफिनाइट मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल. एक सर्कल पे हम बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफिनाइट मैनी. द नेक्स्ट वन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स. एक जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कितने पॉइंट्स पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है. ओनली एट वन पॉइंट. टेंजेंट का डेफिनेशन ही यही है, एक अ लाइन which touches the circle or intersecting the circle exactly at one point is called the tangent to a circle. So a tangent to a circle intersected in dash points only one point. A line intersecting the circle in 2 points is called what? एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है वो टेंजेंट तो नहीं होती है. एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड अ सीकेंट. व्हाट इट इज कॉल्ड. सीकेंट. और ये जो सीकेंट होती है ना इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होती है. दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट. द नेक्स्ट वन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उन्होंने बोला है वो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट जो दोनों के बीच में कॉमन है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12. You have to find out the length of PQ. उन्होंने बोला हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, राइट. उस सर्कल पे आपने एक पॉइंट P कंसिडर करना है, कहीं पे भी कर लो. उस P पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है. किस नेम से. PQ. ड्रॉ अ टेंजेंट PQ at a point P. P is a point of contact. At a point P बोला है ना, P is a point of contact of the circle of radius 5 cm. इस सर्कल का रेडियस कितना है 5. Meets a line through the center O at Q. उन्होंने बोला ये जो टेंजेंट है O से पास होने वाली एक लाइन को Q पे कट करती है. एक लाइन है जो O से पास कर रही है और वो इस टेंजेंट को किस पॉइंट पे कट कर रही है. Q पे कट कर रही है. और हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट. अब PQ की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें OP की लेंथ निकालनी पड़ेगी. अब OP की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. OP की लेंथ तो हमें गिवन दे रखी है 5 सेंटीमीटर. हमें PQ की लेंथ कैसे निकालनी है ये हमारा क्वेश्चन है, राइट. और हमारे पास और कौन सी लेंथ दे रखी है. OQ की. OQ की लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है. अब एक बात, यहाँ पे ये जो रेडियस होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये हमारे पास थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. क्या थ्योरम है कि जो सर्कल के सेंटर से, दैट इज कॉल्ड अ रेडियस, एक सर्कल के सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करो, राइट. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या बनाता है. परपेंडिकुलर बनाता है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये थ्योरम क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये थ्योरम मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर करी हुई है. आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं अगर आपको समझना है कि हाउ OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, राइट. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 है तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. मीन्स OQ हमारे पास हाइपोटेन्यूज है एंड दीज आर द लेग्स ऑफ द 90 डिग्री एंगल. यू हैव टू फाइंड आउट PQ. तो व्हाट वी हैव टू अप्लाई है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है OQ का स्क्वायर, बेस इज PQ का स्क्वायर and perpendicular is 5 square. What is the length of OQ? OQ is 12 square. What is PQ? PQ we have to find out, and 5 square is 25. This is 144
25 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? हियर यू विल गेट 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। हमारे पास PQ की लेंथ कितनी आ गई? √119 सेंटीमीटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का। ड्रॉ अ सर्कल एंड द 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other is a secant to the circle। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है। उन्होंने बोला है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। दिस इज आवर गिवन लाइन। आपको 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द गिवन लाइन। जो दोनों लाइन्स हैं वो गिवन लाइन की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट। उनमें से एक लाइन टेंजेंट बननी चाहिए और दूसरी लाइन क्या बननी चाहिए? सीकेंट। टेंजेंट है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो जो इस सर्कल को टच करती हुई जाए एक पॉइंट पे। यू कैन ड्रॉ इट एज L1 एंड अनदर लाइन यू हैव टू ड्रॉ अ सीकेंट एंड ऑल दीज 3 लाइन्स आर parallel lines. This is L2 and this line you can consider as X. L is the given line. L1 is a tangent and L2 is a secant. Secant is a line which intersects the circle at 2 points. Tangent is a line which touches the circle or intersecting the circle exactly at 1 point, and this is the given line. Is it clear? Hope this exercise is clear. Thank you.